آپ کے بہت کام آئیں گے. 600 آئیے آگے لگائیے لگائیے. اتنے اچھے غلام پھر نہیں ملیں گے. یہ غلام دیکھیے بچہ ہے. غلام ہو سکتا ہے. یہ غلام دیکھیے. وہ دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے. اس کی کیا بولی لگے گی؟ وہ دیکھو مالک بچہ کتنا خوبصورت ہے. اس جیسا غلام آج تک نہیں دیکھا. کاش یہ مجھے مل سکتا. اسے مت بیچو. کیا خوبصورت بچہ. یہ کتنے میں بکے گا؟ وہ دیکھو کتنا طاقتور غلام ہے. میں بھی اسے بیچنے پر دل سے راضی نہیں ہوں. تم نے دیکھا نہیں وہ خود اپنے بکنے پر کتنا مائل ہے. اس غلام کی قیمت کیا ہوگی؟ میں بردہ فروشی تو نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ غلام خوبصورت ہوشیار اور پڑھا لکھا ہے. دیگر مزید خوبیاں بھی ہیں اس میں جو اس کی قیمت بڑھاتی ہیں. یہ غلام میں اسے کم قیمت میں نہیں بیچوں گا. یہ معبد کے لیے بہترین خدمتگار ثابت ہو سکتا ہے اور مستقبل میں بطور کاہن لوگوں کو معبد کی طرف مائل کر سکتا ہے. کوشش کرو اسے ہم خرید لیں. 50 سکوں سے بولی شروع کر دوں. 50 سکے قبول ہے. اس کی قیمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے عالی جناب. 150 سکے. نہیں یہ تو بہت کم ہے. جائے گی وہ خوش ہو جائے گا. اس سے زیادہ قیمت کون لگا رہا ہے؟ یہ دیکھو جناب فوجی گھر آ گئے. ایسے غلام جو آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچے ہوں گے. یہ کھیتی باڑی بھی جانتے ہیں اور شکار کرنا بھی. کیا غلام اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ ہم نے ایسا غلام کبھی نہیں دیکھا. کتنے میں بکے گا؟ میں نے اس سے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. یہ بچہ بہت خوبصورت ہے. رنجیدہ مت ہو یوسف. آج یہ تمہارے خریدار ہیں. ایک روز تم ان سب کو خرید لو گے. یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہاں کیوں جمع ہیں؟ خوبصورتی سب کے وجود میں ہوتی ہے لیکن عیاں نہیں ہوتی. تم میں انسانی وجود کا یہ گوہر متجلی ہوا ہے. یہ سب لوگ خود اپنے اپنے اندر موجود یوسف کی اصلیت اور حقیقت کو دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. یہ لوگ میری خوبصورتی اور حسن کے خریدار تو ہیں لیکن اپنے اپنے اندر موجود خوبصورتی کی حقیقت کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ اپنے اندر موجود خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے چشم بصیرت چاہیے لیکن وہ حقیقت جو تمہارے وجود میں متجلی ہوئی وہ ظاہری آنکھوں سے بھی قابل مشاہدہ ہے. بصیرت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی یوسف لیکن بصارت سب ہی رکھتے ہیں. اس طرح سے تو میں خود بھی انہی کی طرح ہوا. اگر یہ اپنے اندر کی خوبصورتی کی حقیقت جانتے ہوتے تو یہ سب میرے خریدنے کے مشتاق نہ ہوتے. یہ یوسف کے مشتاق نہیں بلکہ در حقیقت خلیفہ خدا کے دیدار کے مشتاق ہیں.
आदम की जियारत के लिए फरिश्तों के इश्तियाक के बारे में सुना है यूसुफ? 250 सिक्के, 250 सिक्के। नहीं जनाब, ये कीमत 300 सिक्के है, बहुत 300 सिक्के। हाँ, आगे बढ़िए, आगे 300 सिक्के में फरोख्त हुआ जाता है। 300 सिक्के। गुलाम की कीमत इससे क्या बढ़कर होगी? कीमत और कौन लगा रहा है? नहीं भाई, मैं तो नहीं भाई, मैं तो इतना ही दूंगा। 450 सिक्के। इसकी कीमत इससे और कहीं नहीं है ज्यादा मेरे है। पास। 500 सिक्के। ये बहुत कवि है, इतना कि अकेला 100 पर भारी है। क्या सिर्फ यही कनीज़े हैं? आली ये भी जनाब, ले आपके चलो। इंतखाब का जवाब नहीं। 3 बोलिए, गुलामों के बोलिए, हुए 1300 सिक्के। तकरीबन 600 सिक्के। है कोई कदरदान? इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? आली जनाब, ये बड़े ही काम के गुलाम हैं। ये भी ले चलो। ये तो बहुत कम है हुजूर। इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? हरकत करो। एक 1010 सिक्के। 1040 सिक्के। अब ये भी मुकाबले पर उतर आए हैं। बोलो क्या करें, बोलो। आज इसे हरा कर रहेंगे। कोशिश करूँ हमसे जीते ना पाए। 1200 सिक्के। 1200 सिक्के। 1300 सिक्के। 1300 सिक्के। है कोई और खरीदार? हरचंद की लगाई गई कीमत 8 से 10 गुलामों की कीमत के बराबर है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। बस कोशिश करो पोतीफार से मुकाबले में पीछे न रह जाए। 1500 सिक्के। 1500 सिक्के। कोई और कदरदान नहीं? 1500 सिक्के। चांद का मकाम है, जैसे किसी जिन्स की खरीदो फरोख्त हो रही हो। अगर इस बच्चे की असली कदर कीमत जानते होते तो सोने चांदी के पहाड़ भी इसके मुकाबले में कम थे। $2000 सिक्के। 2 गुना। 3000 सिक्के। 3000 सिक्के। 3000 सिक्के। अजीज मिस्र जनाब पुतिफार और सिक्के सालार मिस्र 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार से मुकाबला करने की जुर्रत कर भी कौन सकता है। मुबारक हो, इस गुलाम के अब आप मालिक हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपने एक मौद्दिब, बाकमाल और पढ़ा लिखा गुलाम खरीदा है। मजीद ये कि निहायत ही खुशकदम गुलाम है। ये गुलाम जनाब पोतीफार का हुआ। हरकत करो। यहाँ तशरीफ लाइए, यहाँ बेहतरीन गुलाम बराए फरोख्त मौजूद है।
लगाइए, आइए गोली लगाइए। जाओ जुलेखा को बुलाओ। ये गौहरी यगाना कहाँ से लाए हैं आली जनाब? खरीदा है, वो भी भारी कीमत अदा करके। इसके लिए तो जितनी भी कीमत अदा की जाए कम है। जिस अहमक ने भी इस जैसे गौहरे नायाब को फरोख्त किया है उसे कब्र में पहुंचा देना चाहिए। मुर्दों की दुनिया में लोग गुलाम बेचते हैं ताकि जरो जवाहर हाथ आए। इस अहमक बर्दा फरोश ने ऐसे गौहरे नायाब को बेचकर क्या हासिल किया? ये आपका बड़ापन है, मैं गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं। कसरे पुतिफार में खुश आमदीद बरखुरदार। आपका शुक्रगुजार हूँ आली जनाब। तशरीफ लाते ही हमारी याद सताने लगी। क्या बतौर खास तलब करने का सबब जान सकती हूँ? ये तोहफा पसंद आया तुम्हें? मैंने इस बच्चे को पहले कहीं देखा है, आलम में ख्वाब में या फिर नहीं मालूम, लेकिन आशना सा लगता है। जनाबे पोतीफार इंतखाब की दाद देनी चाहिए। ये बच्चा वाकई बहुत खूबसूरत है जनाबे पोतीफार, लाजवाब है। क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ। यूसुफ ये नाम या तो अरामी है या फिर इब्रानी। मैं इब्रानी हूँ।
शाम में वाक़े शहर कनान का रिहायशी। इन लोगों का मशगला भेड़ बकरियां चराना है। यूसुफ, हाँ यूसुफ। नहीं, मुझे ये सहरा नशी बद्दू कबाइल के नाम पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो इसके लिए किसी मिस्री नाम का इंतखाब करें। ये बच्चा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा है, सो जिस नाम से चाहो पुकारो। मैं जनाब पोतीफार की निहायत मशकूर हूँ। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो बंदे की नजर में एक मिस्री नाम है। कहो। एक नाम जो यूसुफ से मिलता जुलता है, युजारसीफ। युजारसीफ बुरा नहीं, युजारसीफ बल्कि बहुत ही अच्छा है। आज से तुम्हें युजारसीफ कह के बुलाएंगे, राजी हो? अगर आपको पसंद है तो मैं भी राजी हूँ। मैं चाहता हूं कि आप लोग युजारसीफ का इज्जत और एहतराम बचा लाएं। शायद ये हमारे लिए मुफीद साबित हो, और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम इसे बतौर अपना वली अहद इंतखाब कर लें। क्यों नहीं, युजारसीफ से बेहतर और कौन होगा। तुमने देखा कितना खूबसूरत है। मैंने अपनी तमाम उम्र में इतने खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। यानी वो एक गुलाम है। जैसे इसे तो गुलाम नहीं लगता। ये तुम्हारा कमरा है, पसंद आया? शुक्रगुजार हूँ बानो, बहुत अच्छा है। इसके आराम के लिए तमाम असबाब मुहैया करो।